recording. Okay, so our today's goal is all about Flutter basics to advance and to understand all the basic knowledge about Flutter. And in the last, we will make one application. Okay, so here I'm going to share my screen so that you will get a better idea. Is my screen visible? Yes, ma'am, we can see your screen. Okay. So before developing in Flutter, we should know what is Flutter. Okay. And why we should learn Flutter and what is the benefit of Flutter and how it is better than other components and other counterparts. Okay. So first we will see overview of Flutter. Here in the overview, we will see what is Flutter, why Flutter, and how it is better than other counterparts and benefits of Flutter. Okay. So first slide is all about what is Flutter and what is native plus cross-platform. Okay. So Flutter is a tool that allows you to build native cross-platform applications with one programming language and code base. Okay, so as you can see on the screen, Flutter is a tool that helps you to do native cross development using one programming language and code base. Okay, for Android, iOS, web, and desktop. So using one programming language, we can develop our application for those platform. Okay, so now what is native plus cross platform? Okay, so let's understand with this a normal example. If I want to develop an app in these four things like in Android, iOS, web, and desktop, then the problem is there are four different languages and that I will have to learn and then I can develop in them. Okay, so no, there is nothing like that in Flutter because Flutter is a cross platform. That means you will have to design a single code base and that code you can get it executed on any platform. That is, it is a multi-platform or a platform independent. So there is no dependency. Okay, so when we talk about platform independence, that means the tool is platform independent. You don't have to learn its native language. Okay, so via one programming language and code base, you have to write one programming language throughout the code and you don't have to learn multiple language for different platform. Understand? Now, in the next slide, we will see native versus cross-platform versus hybrid. All of you, am I audible? Yes, ma'am. We can. Yes, yes. Okay. So, now native versus cross-platform versus hybrid. So all over the world, development is taking place in these three phases. Okay, first is native, second one is hybrid, and third one is cross-platform. So first is native. Native means a native place. A basic example, native place where I was born. That place will be native for me. Okay, so it means an application which was developed by using its developing toolkits and its root languages or its main language will be called a native application. Okay, so let's take an example. If you want to develop an Android application, then you should know Java or Kotlin language. And if you want to develop an UI, then you should know XML language for UI and Java and Kotlin for logic part. Okay, then you can develop and install and release it. So this is the process or development will be called native development. So same for website and same for desktop also. So here you will have to here you will have to know different language for UI and different language for logic. Okay, so this is all about native. Now hybrid. By the name of hybrid we can understand blind solution. तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश में इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जो एप्लीकेशन हम बनाएंगे मैं उसको हिंदी में आपको पूरा एक्सप्लेन कर लूंगी. नो वरी अबाउट इट. ठीक है, सही है. As we know, all over the world, development is taking place in these three phases. Okay, native, hybrid, and cross-platform. So we have seen about native and hybrid. Now it's time to know about cross-platform. Okay, now we will not stop anywhere. Okay, so cross-platform, it means you have to write code once and you can reuse it for different platforms, for Android, for iOS, for web, and for desktop. So it was very important to understand this all term, that is native, hybrid, and cross-platform. Okay,
Now you can see here a image that is Flutter over other cross platform. Now let's talk about how Flutter is better than its counterpart. First of all, okay. So here I have drawn a simple diagram so that you can understand why Flutter is better. So here I have given a common example of raise button. You can see here raise button, and it's a button that is raised and which has a shadow. If you tap on it, then you will get a tap effect on the button, like 3D effect, but it's not 3D effect, but when you tap on it, it will give us a tap effect. So if you write a code of the raise button on other frameworks, uh, mm, or other cross platform tools, then for iOS they will call the UI button component, and in case of Android they will call the widget button. Okay, that means they are calling their components or libraries in the runtime. They are being executed there. Okay, so and in Flutter, if you write the same code of the raise button in Flutter, then when the code of Flutter will be executed on iOS and Android, then it does not have any requirement for the native development, and no requirement for libraries and component also, because it has own rendering engine. What it does, it directly control every pixel which is drawn. That means if we are developing any app or any software through Flutter, then the UI you will get to see is custom implementation of Flutter. That is, it has rendered it with its own rendering engine. So this reduces dependency of native components of the platform. Plus, we can design our most complex to complex design well through the Flutter. So here I tried to explain to you the basics that how Flutter is better than its other counterpart, that is other cross platform. Okay, now let's move ahead and see its benefit. You can see here I have mentioned some benefits, 8 benefits I have mentioned here. Okay, so the first benefit is increased time to market speed. Now let's understand this point with an example. If I have a company and client requirement is to make website for him, then I will tell my web developers who develop web software, so they will develop that. Okay, and after that client came and said there is a demand for the desktop, then my desktop developer who develop software for the desktop, that I will tell them that they have to develop the software. So here in this process you can see how much time is can take. Okay, so now if you talk about Flutter, then you have to create a code base on the basis of programming language, and you can run that particular code base on all platform. Okay, so here time to market speed will increase, and because time has been reduced, your speed will increase. Okay, now the second point is to reduce code development time. Second point is related to our first point. So here development time is less because we have to design only one code using only one programming language. Okay, and now the third point is the potential ability to go beyond mobile. It means the Flutter targeting development on mobile, iPhone along with desktop and web with the same code base. Okay. Now another fourth point is same UI and business logic in all platform. It means at a time we can launch our app at any platform with the same logic and same UI process. Okay, understand? Now fifth point is custom animated UI of any complexity available. Okay, so Flutter have its own rendering engine so that we can design any complex to complex design UI design here. So we will get different types of animation by default, and we can customize it so that our overall app performance will increase. Okay, now sixth point is similar to native app performance. Here we cannot feel that there is any limitation, but we can feel that it is developed natively. Okay, now seventh point, own rendering engine. So because of this, whatever the lags come in UI, that will be resolved, so we can create complex UI and can upgrade it for a higher level, and we can also improve it. Okay, and now last point, it's simple platform specific logic implementation. For that, Dart language is used here, so that we will discuss later.
it's a very simple language. If you have a less knowledge about any development or any native language, then you can easily understand the Dart and you can learn it in very less time. So this is the only one programming language which is used in Flutter. It means all the UI and its logic and backend will be managed with this language. So that time will be short for them who want to learn this language. Okay. So it's very easy to use, easy to learn, and familiar with other native language. Okay, this slide is all about Flutter architecture. So we will see what is the architecture of Flutter and its basic component. Okay, so first of all, Flutter is all about widgets. Whenever we build UI, then we have to build a widget tree. Widget tree means nesting. Okay, here you can see this is a widget tree. Okay, so whenever we create any application, that means we are creating a kind of widget tree because it's all about widgets. As you can see on the UI, everything is a widget. Here you can see this is a text field, and inside the text field you can see image, then label, then text, then icon. So these all are the widget. This is also widget, this is also widget. So Flutter is all about to widget. Okay, now second comes platform differences. Okay, here we can create universal design for the app which we can develop for cross platform. But if we want to create an app which we want to develop for some specific platform, like particular visibility on iPhone or Android or Mac or web, so this is the thing you can achieve with the help of the conditional programming. Okay, now third one is code base. So here the code written in Flutter only, here the code written in Flutter written in Dart only. So it is a single code base. Okay, so you can see this UI is made by Dart language only. There is no need to learn any other language. Only if you want to learn Dart, then you can develop any Flutter application, any website, desktop and iOS. Okay, now fourth one, we can see the flow of widget on the screen. You can see the formation of the widget here with the help of diagram. So first there is a my app, then we created material app in my app. Whatever the component we have to show on the screen, those we are making a scaffold. Okay, so here you can see whatever the UI you can see here, this made in the scaffold only with the help of Dart language. Okay, so if you see the structure, every component is a widget. Okay, now inside the scaffold, most important widget is app bar, which is on tab. So we will see in the app development when we will develop our app at the end. Okay, so that's all about architecture. Now this is the screen of Android Studio. You can use VS Code also, and you can use Android Studio also. But for development, I use here Android Studio because here I get AVD, that is Android Virtual Device. So you can write code and you can run this code on this particular device, and instantly you can see changes and you can make changes here. Okay. So first we will see create a new project. How to create a new project? We will see that. So this is a Android Studio. Visible? Yes, ma'am, it's visible. Okay. Yes. So Yes, ma'am. So to create a Flutter project, you have two options. Okay. First option is command prompt or command kit, and second option, if you use Android Studio, then you can also create project from here also. Okay, so here I will show how to create new Flutter project. So here you have to go here, new Flutter project. It's similar to VS, right? Yeah, it's similar to VS. You can use VS also. Okay. And it is a Flutter SDK path. Okay, then next, and here you can give any name to your application. So at the end we are gonna make one application that will be BMI calculator. Okay, so let me give a name, BMI. Always start a name with a small letters. Okay, and if you want to give any space, then you have to use this underscore BMI. Let's BMI calculator. Okay, and project location is this. Then description, you can describe your project here.
Then project type is application. Organization, if you have any organization name, then you can put here. Then Android language, Kotlin and Swift. Platform will be on which platform have to develop the application or web, then you can mention here. Yeah, so I'll leave it as it is for now, and then finish. And you can see creating a Flutter project. So this is how we can create Flutter project in the Android Studio. Okay. So here you will see that some generated files and folders are coming, okay, in the left side. And this is a default code. This is a default counter code, okay. And why I use Android Studio? Because I get easily here a AVD, that is Android virtual device, okay, that I have created already. So let me start it. So now we will see an overview of the generated files and folder, okay. Okay, these are the file and folders, okay. As I have created a project, you can see here some files and folders are created. So this will give you an idea that which file comes in use, which folder is for whom, which changes make a difference in which particular component, and when you develop a Flutter app, okay. So one by one we will see that. Okay, so first of all we will see .idea folder, okay. So in your idea folder, your project related specific setting will be stored of the particular ID or editor which you are opening, okay. You can see here .idea folder. Here you can see setting logo, okay. Now next one is Android folder. So in this folder, only regarding the Android platform you can make changes, but 90 to 95% you don't need to change in this folder. It can be required for 5% only, just to add certain features, okay. You can see this is Android folder here. This is all about our Android app. Now third one folder is build. So the build folder contains the output generated when you build or run the Flutter project. You will find all the release related file folders like APKs and app bundles in here. Okay, so you can see here it's a orange color folder. It means it is runtime generated folder. We can delete this folder because it will be created again when you run the next time or debug next time, okay. So here you can see that this is a emulator, and when you run this project, this will rebuild again this folder, okay. Now iOS folder. So similar to Android folder, the iOS folder contains iOS specific settings, resources and code. You will make the platform specific code or changes here, okay. So simply this is iOS folder, okay. Now next one we will see now leaf folder. So the leaf folder is a main folder where you will write all the Flutter app related codes. Initially, it will contain just one single file, main.dart, which has the entry point for the Flutter app. So here you can see this is the leaf folder, which is the most important folder in the Flutter. Here you can make classes, file, make changes accordingly. Here you will see this is a default file, main.dart. So in the main.dart file you will get this default project, default code, and this is nothing but a counter code, okay. So when I run here, and you will see this comes on the screen. Now next one we will see test folder. So the test folder is set to contain any testing related codes that you write. If you decide to write test and test cases, you will be adding code in here, okay. So initially there is no requirement of that folder, okay. Next one is .gitignore. This is a git specific file. You can adjust the .gitignore file to include or exclude any files and folder as you need.
Okay, so this is used for VCS. VCS means version control system. VCS, you can see here, this is VCS option, that is version control system. So in this folder, this is a git ignore. In this folder, we can place those files which we don't want to upload on a git. Okay. Now next one is dot metadata. So dot metadata folder, as name suggests, the metadata file contains Flutter project related metadata that Flutter tool uses. You should not make any manual changes to this file. Okay, so it's simple. Now dot package folder. So a Flutter project code is composed of numerous libraries and packages. Some packages are pre-installed with Flutter while others are downloaded during development. The dot package holds the paths to each of the libraries or packages in your local computer. You do not need to make any manual changes to this file. Okay, so there is no need to change any manual change in this file. Okay, now next one is a pubspec.yaml file. The pubspec.yaml contains Flutter app specific metadata and configuration. You can configure dependencies such as external packages, images, assets, font, files, app, version, etc. with the help of this file. You will often make changes to the pubspec.yaml file to add external dependencies. I will show you. This is a pubspec.yaml file, and here you can see that your app name, then version, then SDK, then you can add here dependencies, libraries. Okay, and you can add here asset path, images path, and you can add here some fonts. Okay, so this is all about pubspec.yaml file. Now pubspec.log. So this pubspec.log file is a helper file created next to the pubspec.yaml. So pubspec log file is generated in runtime. When we pubget in pubspec.yaml, so the pubspec log file is depends on the pubspec.yaml file. Okay. Now last one is readme.md file. So when a repository is created in a Git, basically it is used there. There you can give a brief description about your project. Okay, so if you know GitHub, Git desktop, then there whenever you develop your project and you have to upload on GitHub, then you have to make inside the GitHub one repository or many repository you can make. So inside that repository you will get that readme.md file, so where you can describe your whole project, all the dependencies, whatever the dependencies you add, and whatever the description you want to add, you can add there. Okay, now we will see here you can see creating Android virtual device. So this is a Android virtual device I have created in Android Studio. Okay, it is very easy to make. Now running the app on emulator. This is a emulator, you can say, and running the app on real mobile. So you can run your app on your real mobile also. Okay, then running the app on iOS emulator. You will get iOS emulator in Xcode. If you want to build application for iOS mobile or iOS desktop, then what you have to do, you need to install Xcode in your system, and in Xcode you will get one developer tool, that is a simulator. Okay, so you can run your project on that simulator. Then running the app on web browser, you can run your app on web browser with a single code base. Okay, there is no need to use different language for UI and different language for logic. Okay, you can run your app on Mac OS and Windows operating system also. Okay, here you will get some options like Chrome web. Here you can run that. So Pixel 4 XL, this is my AVD that I have created. Then on Mac OS desktop, you can run the project on Mac OS desktop. Then simulator also. Okay. So Flutter is single code based framework where we develop our app and Dart language will be used here. So UI for user interface and UX is for user experience. So Dart was initially launched in
2011 and developed by Google. Okay, so it is focused on front end user interface development for mobile, web, and app. Okay, and it is a combination of three languages: Java, JavaScript, C hash, or C script, we can say. So it follows OOPS concept, object oriented programming. Okay, so this is focused on user interface development. Okay, now we will see benefits of Dart. Okay, so Dart gives us async and await option. Okay, so async means asynchronous and await means to wait. Most important use of async means which you are building an app, there is a task which will take indefinite time to execute, means we cannot define time. It can be 1 second, 2 second, 5 seconds. So this process is like downloading a file from internet or downloading some data, means there is no time fix. So in that case we will do asynchronous programming, which is also called a parallel programming. And await means here you have to wait for a particular result which will come in the future. So for this thing we use these components in a Flutter development. Okay, now let's talk about very important feature of Dart which will be very useful for you as a developer when you do development in Flutter. Okay, Dart is one of the very few language supporting both kinds of compilation, AOT and JIT, which provide significant advantages to Dart and especially in Flutter hot reload feature. Okay, so basically there are two compilers combination. There is AOT. AOT means ahead of time and JIT means just in time. So now let's understand what is a compiler. When we write some code in any programming field, okay, not in just Flutter but any programming field, then we execute that code or existing event in runtime. Then at that time this set of instruction which we have to keep in our Flutter application or any programming field, then to send that thing to the machine there is a compiler, there is always a compiler, so which compiles it and generate it in bytecode. Then our generated bytecode is executed on machine, so for that we need compiler. So in any programming field compiler is always there. Now we will see what is AOT and JIT. AOT means before time and JIT means to compile it at the same time and run it. So as a developer you will see feature like hot reload and hot restart in Flutter. So where does that benefit you? That thing benefits you when you write a program and create some pages or screen. If you want to do some changes in some pages, then you can change it, you can rerun it, debug it on your phone with the help of hot reload features in Flutter. Okay, I will show you. This is a hot reload feature and this is a hot restart feature. Whatever the changes you want on your UI, instantly it will helps you to update it. Okay, it will help you to upgrade it. Okay, so what it will do, as soon as you control or you save, then whatever changes you have made on that particular screen, it will apply them at the same time by compiling them with the help of just in time, and it will update that screen and show it. Now when you want to do app live or you want you to entire app for testing and want to show your app to the client, then in that case what you will do, you will create an installable file for that particular platform. So at that time ahead of time is used. Okay, whenever your app is getting fully installed, and what does AOT do? It compiles everything together and create a file which will be run on that particular platform. So from this your developing time can be saved from your hot restart and hot reload feature. So that is support both AOT and JIT. Okay, now next is extremely fast development cycle and fast execution startup time. So in very short time you build very good application. Okay, now that can be compiled into JavaScript, so it can be executed by browser. So this is the main reason
and Flutter doesn't split layout between your program and additional templating or layout language like JSX or XML, nor does it require separate visual tool. So only one language that is used for the every logic. Okay, now in this diagram, whatever widgets and package you use in Flutter, you can use them with the help of Dart code in Dart code only. Okay, so this is all about Flutter, Dart and Flutter. Okay, now if you want to learn Flutter, then you should know some basic knowledge about classes and object, variables and data types, variables and variable versus dynamic differences, what are the function, list in Dart, Dart hash map, final versus constant keyword, what is the conditional programming, Dart loop and Flutter widgets. These are the basic knowledge you can learn anytime in a very less time. Okay, so these all are about Dart. And if you can see here are Flutter widgets. So most important thing in Flutter is a Flutter widget. With the help of widget, you can develop your application, website and anything for the cross platform. Okay, so as you can see, this is a container. Container is look like this. Then there is a widget, center widget. I will tell you what is container, how to use container, where to use container, because we will use them in our app. Okay, center widget, then text widget and its style, and so many. There are a lot of widget you can learn here. So when I will start batch, so I will teach deeply each and everything, because now I have less time, that's why I skip it. Okay, so it's time to make an application. Okay, तो हिंदी में ही बात कर लेते हैं अभी एप्लीकेशन की बात आई है तो ठीक है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम बनाने वाले हैं BMI एप्लीकेशन। ओके, BMI मीन्स क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स, एंड उसका जो फॉर्मूला होता है वेट, रेशियो ऑफ वेट टू हाइट स्क्वायर, एंड इट्स ऐसा यूनिट इज केजी पर मीटर स्क्वायर। तो बॉडी मास इंडेक्स इसलिए निकाला जाता है ताकि हमें पता चले कि हम ओवरवेट है कि अंडरवेट है कि हेल्दी है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन को कैसे बनाते हैं ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। मैंने इससे पहले ये छोटी सी एप्लीकेशन बनाई हूँ, आप देख सकते हैं ये जो दिख रहा है ये ऐप बार है। ठीक है, तो और उसके नीचे ये सारे जो चीजें दिख रही है ये बॉडी है। तो बॉडी के अंदर ये सारी चीजें विजिट है, ये भी विजिट है, ये भी विजिट है, ये भी विजिट है, और सारी चीजें विजिट है। यहाँ पे आप कीबोर्ड देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर कीबोर्ड आपको दिखेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट करने वाले हैं इनसाइड द टेक्स्ट फील्ड, तो हम लोग नंबर कीबोर्ड यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलिए डेवलप करते हैं हमारी एप्लीकेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, आई विल रिमूव द रिडंडेंट कोड हियर। तो ठीक है, मैं ये कोड को हटा देती हूँ। ये आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा जब भी आप एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करते हो, तो आपको ये बाय डिफॉल्ट कोड मिल जाएगा। ठीक है, इसमें सबसे मेन फंक्शन होता है वॉइड मेन फंक्शन, जहां पे हमारी ऐप रन होती है। ठीक है, उसके बाद स्टेटलेस विजिट क्या होता है, स्टेटलेस विजिट मतलब अगर हमें हमारे यूआई में कोई भी चेंजेस या अपडेट या लॉजिक नहीं चाहिए तो हम लोग स्टेटलेस विजिट को यूज करेंगे। और अगर हमें हमारे यूआई पे कोई चेंज चाहिए, कोई लॉजिक चाहिए या फिर अपडेटिंग वैल्यूज चाहिए, तब उस केस में हम लोग स्टेटफुल विजिट को यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग BMI एप्लीकेशन बनाने वाले हैं और इसमें यूजर के जो इनपुट रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा जो यहाँ पे रिजल्ट है वो शो होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, स्टेटफुल विजिट की। तो हम यहाँ पे स्टेटफुल विजिट की क्लास बनाएंगे। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है STF, तो आपकी ये स्टेटफुल विजिट की क्लास बन जाएंगी। इसे मैं सेम यही नाम दे देती हूँ। ठीक है, अभी के लिए आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जो भी नाम आप यहाँ पे देंगे वो आपको होम में देना पड़ेगा। ठीक है, सो माय होम पेज। ओके, लेट्स एंटर। यहाँ पे मैं इसे कन्वर्ट टू यूजिंग सुपर पैरामीटर कर देती हूँ, तो ये छोटा सा एरर है वो चला जाएगा। और जब मैं इस एप्लीकेशन को रन करूंगी
ओके, मैं ये टाइटल को भी रिमूव कर देती हूँ, ये बाय डिफॉल्ट टाइटल था जो काउंटर कोड था उसका। ठीक है, तो मैं अभी इससे रन करती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्लेस होल्डर आया है, क्योंकि ये जो क्लास है स्टेटफुल विजिट जो है वो रिटर्न कर रही है प्लेस होल्डर को। दैट्स वाई वी आर गेटिंग प्लेस होल्डर ऑन आवर इम्यूलेटर। ओके, तो प्लेस होल्डर की जगह हम लोग स्कैफोल्ड विजिट यूज करेंगे, क्योंकि स्कैफोल्ड मतलब होता है ब्लैंक स्क्रीन। ओके, ब्लैंक स्क्रीन पे हमें जो भी चीज करना है हम लोग करेंगे। लेट्स सेव इट एंड यू कैन सी white screen here, and whatever you want to do on the screen you can do according to your requirement. Okay, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हमें अगर ये डीबग वाला बैनर हटाना है तो सिंपली हम यहाँ पे डीबग शो चेक मोड बैनर करेंगे और उसको फॉल्स कर देंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। लेट्स सेव इट एंड यू कैन सी हैज बीन रिमूव्ड। ओके, सो इनसाइड दिस स्कैफोल्ड विजिट हम अभी हमारा जो कोडिंग है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, दिस इज अ फ्रेश स्क्रीन, ब्लैंक स्क्रीन। ओके, तो अभी हमें क्या बनाना है, अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐप बार है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐप बार बनाएंगे। ठीक है, तो हमें ये ऑप्शन मिलेगा ऐप बार, एंड इनसाइड द ऐप बार वी विल गेट लॉट ऑफ ऑप्शंस लाइक यू कैन सी लीडिंग, ऑटोमेटिकली, इम्प्लाई लीडिंग, ट्रू, टाइटल मिलेगा, एक्शन मिलेगा और काफी सारी चीजें हमें यहाँ पे मिलेंगी। लेकिन अभी के लिए हमें ऐप बार चाहिए यहाँ पे, तो हम लोग ऐप बार लेंगे। सॉरी, ऐप बार ऑलरेडी लिए है। अभी हम इस ऐप बार में टाइटल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइटल दिया है यूर बीएमआई, तो हम लोग वही लेंगे टाइटल। टाइटल एज अ टेक्स्ट लेंगे हम लोग, क्योंकि वो टेक्स्ट है, तो यूर बीएमआई। ओके, लेट्स सेव इट, और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यूर बीएमआई आ गया है। जी, जैसे हमें चाहिए हम वैसे यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं, काफी सिंपल कोडिंग होती है। टेक्स्ट चाहिए तो टेक्स्ट लिखेंगे और इनसाइड द टेक्स्ट यू विल गेट लॉट ऑफ ऑप्शन। ओके, तुम्हें टेक्स्ट लिखना है टेक्स्ट लिखो, उसको स्टाइल भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्टाइल करती हूँ, तो टेक्स्ट स्टाइल की मैं स्टाइल देना चाहूंगी। यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज जो है उसको मैं कर देती हूँ 28 सपोज, एंड फॉन्ट वेट मतलब मुझे बोल्ड कितना चाहिए, तो फॉन्ट वेट मैं उसको बोल्ड कर देती हूँ 800। ओके, लेट्स सेव इट, एंड यू कैन सी ये बोल्ड भी हो चुका है और इसका फॉन्ट साइज 28 हो चुका है। ठीक है, लेकिन अभी हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐप बार है, क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो व्हाइट है। तो हम लोग इसमें सिंपल बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं इनसाइड द ऐप बार। तो बैकग्राउंड कलर हम लोग कलर देंगे, इसमें कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे मैं देती हूँ ब्लैक कलर। ओके, लेट्स सेव इट एंड यू कैन सी योर बीएमआई यहाँ पे काफी फेंट दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो टेक्स्ट है ऐप बार का, उस टेक्स्ट को ये जो स्टाइल है उसके अंदर हम कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, कलर देंगे, कलर कौन सा देंगे, व्हाइट देंगे ताकि वो विजिबल हो। कलर्स डॉट व्हाइट। ठीक है, अभी हम इसे सेव करते हैं। देख सकते हैं अभी ये काफी अच्छे तरीके से विजिबल हो चुका है। ये कोड पूरा दिखना चाहिए करके रिफॉर्मेट कोड विद डार्ट फॉर्मेट कर लेंगे। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, हमारा ये जो है ऐप बार वो बन चुका है। अभी टाइम है कि हमें ये बॉडी बनानी है, तो दिस इज अ बॉडी। ऐप बार के बाद बॉडी आती है, बॉडी के अंदर हमें जो डिजाइन करना है वो हम करते हैं। ठीक है, तो बॉडी, सॉरी, आफ्टर ऐप बार वी हैव बॉडी ऑप्शन। इनसाइड द बॉडी हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो डिजाइन है वो बना लेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी विजिट है, ये भी विजिट है, ये भी सारी चीजें विजिट है, लेकिन ये सारे विजिट्स क्या है, लाइन बाय लाइन है। ठीक है, जब भी विजिट्स लाइन बाय लाइन हो, एक के नीचे एक हो, तो उससे हम कॉलम के अंदर डिजाइन करेंगे। अगर वो साइड बाय साइड हो, एक के बाजू में एक, तो हम उसको कॉलम में डिजाइन करेंगे। क्योंकि ये लाइन बाय लाइन है तो हम क्या करेंगे, कॉलम विजिट ले लेंगे। ठीक है, कॉलम लेंगे, कॉलम के अंदर एक एक चीजें डिजाइन करेंगे। कॉलम के अंदर हमें हमेशा मिलता है एक एट्रीब्यूट दैट इज चिल्ड्रन। तो काफी चिल्ड्रन यानी यही हो चुका है, ये सारे चिल्ड्रन ही है उसके, तो हम वन बाय वन उसको डिजाइन करेंगे। तो पहला चिल्ड्रन हम बनाएंगे टेक्स्ट विजिट। तो सिंपल हम लोग लेंगे टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर हम लोग लिखेंगे बीएमआई और सेम स्टाइल दे देंगे। ठीक है, इसे स्टाइल दे देते हैं हम लोग, स्टाइल टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल के अंदर हम इसका फॉन्ट साइज जो है वो मैं कर देती हूँ 26, एंड
इसका फॉन्ट वेट मतलब ये कितना मुझे बोल्ड चाहिए उसे मैं कर देती हूँ 700. ओके एंड लेट्स सेव इट. लेट्स सेव इट. आप देख सकते हो BMI यहाँ पे आ गया है. ठीक है, हम चाहे तो इसे और थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि ये और ज्यादा विजिबल हो. ठीक है, इसके बाद ये हमारा टेक्स्ट विजेट बन चुका है. अभी हमें टेक्स्ट फील्ड बनाना है. तो टेक्स्ट फील्ड बनाने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है टेक्स्ट फील्ड का. ठीक है, टेक्स्ट फील्ड एंड इनसाइड द टेक्स्ट फील्ड आपको ये काफी सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे. लाइक कंट्रोलर हो गया है, डेकोरेशन हो गया है, टेक्स्ट इनपुट टाइप, कीबोर्ड टाइप हो चुका है. तो काफी सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे. जो चीज भी टेक्स्ट फील्ड के अंदर आपको डिजाइन करनी है आप कर सकते हो. ठीक है, लेकिन अभी हमें यहाँ पे डिजाइन करना है ये आइकॉन. ठीक है, ये हाइट, ये वेट का आइकॉन है. उसके बाद में ये हमें लेबल दिख रहा है और ये टेक्स्ट है. तो अभी ये जो फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड है यहाँ पे लिखा है एंटर योर वेट इन केजीज. तो हमें 3 टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये जो बॉडी मास इंडेक्स है इसके लिए हमें हमारी हाइट पता होनी चाहिए और वेट पता होनी चाहिए. और जनरली लोगों को वेट केजीज में पता होता है और हाइट जो होती है वो फीट और इंचेस में पता होती है, मीटर में पता नहीं होती है. तो उसके लिए हमें वो कन्वर्ट भी करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पे 3 टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे. पहला तो केजी, वेट इन केजीज, उसके बाद हाइट इन फीट्स और हाइट इन इंचेस के लिए. यहाँ पे यूजर अपना वेट डालेगा, अपनी हाइट डालेगा, जो भी है. जैसे 6.1 है तो 6.1 और वो कैलकुलेट करता है तो उसका BMI यहाँ पे दिख जाएगा कि वो अंडर वेट है, ओवर वेट है कि हेल्दी है. और उसका जो यहाँ पे BMI का जो काउंट है वो भी यहाँ पे दिख जाएगा. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे लेबल बनाएंगे और आइकॉन बनाते हैं. तो उसके लिए हमारे पास होता है डेकोरेशन, क्योंकि ये एक टाइप का डेकोरेशन ही होता है. तो इनसाइड द टेक्स्ट फील्ड हमें डेकोरेशन करना है. तो हम लोग लेंगे डेकोरेशन और इनसाइड, क्योंकि ये अंदर करना है डेकोरेशन तो इनपुट डेकोरेशन. यहाँ पे हमें काफी सारे ये मिल जाएंगे ऑप्शन. ठीक है, व्हेन यू होवर ऑन इट यू विल गेट लॉट ऑफ ऑप्शन हियर. देख सकते हैं कलर, आइकॉन कलर, लेबल भी देख सकते हैं. तो हमें पहले हम यहाँ पे आइकॉन देंगे. आइकॉन क्लास को हम लोग कॉल करेंगे. ठीक है, आइकॉन क्लास के अंदर हमें मिल जाएंगी जो भी हमें आइकॉन चाहिए. जैसे मुझे लाइन वेट ले लेती हूँ. ठीक है, लाइन वेट एंड लेट्स सेव इट. तो अब देखिए यहाँ पे आइकॉन भी आ चुका है. दिख रहा है आपको? कोई तो आंसर कीजिए, क्या समझ रहा है मैं जो बता रही हूँ? ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए? यहाँ पे लेबल चाहिए. तो हम लोग लेबल लेंगे. सिंपल लेबल क्या है? टेक्स्ट है एक टाइप का. तो हम लोग टेक्स्ट लेंगे यहाँ पे, टेक्स्ट एंड इनसाइड द टेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंटर योर वेट इन केजीज. सो एंटर योर वेट इन केजीज. ओके, लेट्स सेव इट. और देखिए आपका लेबल भी यहाँ पे आ चुका है. अभी जैसे ही हम यहाँ पे टैप करेंगे हमारा कीबोर्ड जो है ओपन हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे लेटर्स भी दिख रहे हैं, नंबर्स भी दिख रहे हैं. लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे जो वैल्यूज इंसर्ट करनी है वो नंबर्स में रहने वाली है, तो हम लोग जो कीबोर्ड है वो क्या लेंगे? वो कीबोर्ड हम लोग नंबर वाला लेंगे. तो कीबोर्ड टाइप, उसमें कीबोर्ड टाइप हमको मिलेगा टेक्स्ट इनपुट टाइप डॉट नंबर लेंगे, क्योंकि हमें नंबर चाहिए है. नंबर सिंपल सेव करेंगे और इसे हम लोग एक बार हॉट रिस्टार्ट कर लेते हैं. हॉट रिस्टार्ट के बाद ये क्या होगा? बिल्ड फंक्शन कॉल होगा और सारी चीजें यहाँ पे अपडेट हो जाएंगी फिर से. ठीक है, और जब हम लोग यहाँ पे टैप करेंगे तो आप देखेंगे कि ये लेबल ऊपर गया है और नंबर वाला कीबोर्ड आ चुका है. ठीक है, तो जब भी हम लोग टेक्स्ट फील्ड में कोई भी वैल्यू यूजर अगर डालता है, ठीक है, ये वैल्यूज डालता है, तो उस वैल्यू को हमको लेने के लिए यहाँ पे यूज होता है कंट्रोलर. ठीक है, तो वो कंट्रोलर अभी हम लोग बनाएंगे, क्योंकि हमें वो वैल्यूज लेना भी तो है अगर यूजर यहाँ पे इंसर्ट करता है तो उसके लिए हम लोग वो कंट्रोलर को फिर हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं थ्रू आउट अवर एप्लीकेशन. ठीक है,
मे बी हमारा टाइम है 4 मिनट्स लेफ्ट बता रहा है, तो प्लीज फिर से ज्वाइन कीजिएगा, मैं लिंक भेजूंगी तो ठीक है। तो ठीक है, हम लोग कंट्रोलर बना लेते हैं फटाफट से। ओवरराइड के ऊपर हम लोग वेरिएबल बनाएंगे, क्योंकि ये जो टेक्स्ट फील्ड है वो वेट के लिए है, तो वेट कंट्रोलर बनाएंगे। कोई भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये वेट के लिए है तो मैं वेट कंट्रोलर बोलूंगी इसको। वेट कंट्रोलर इज इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, क्योंकि ये टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर होता है। ठीक है, तो ये हमारा वेट के लिए बन गया। उसके बाद हम लोग फीट के लिए बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 टेक्स्ट फील्ड है तो 3 वेरिएबल बनाने पड़े, 3 कंट्रोलर बनाने पड़ेंगे हमें यहाँ पे। ठीक है, इक्वल्स टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। उसके बाद में हम लोग बनाएंगे इंच के लिए। ठीक है, इंच कंट्रोलर इज इक्वल्स टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ओके, तो ये हमारे 3 कंट्रोलर बन चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इनको अपडेट करेंगे हमारे टेक्स्ट एडिटिंग टेक्स्ट फील्ड के अंदर। ठीक है, तो कंट्रोलर पहला कौन सा था, वेट कंट्रोलर, क्योंकि ये टेक्स्ट फील्ड वेट के लिए है, तो वेट कंट्रोलर। ओके, तो ऐसे ही हमें कितना टेक्स्ट फील्ड चाहिए रहेंगे यहाँ पे, 3, 1, 2 एंड 3। ओके, तो हम क्या करेंगे, ऐसे 3 टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे। तो लेट मी कॉपी, और हाँ यहाँ पे कॉमा काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो कॉमा देना नहीं भूलना है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कंट्रोल डी कर देंगे, क्योंकि टाइम कम होने की वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट यूज करती हूँ। ठीक है, तो हम पहला कंट्रोलर हमने वेट के लिए बना लिया है। सेकंड हमारा फीट कंट्रोलर है। ओके, जो वेरिएबल हम लोगों ने यहाँ पे बनाए हैं वही हम इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, इन टेक्स्ट फील्ड के साथ। ओके, फिर उसके बाद ये हमारा हाइट रहेगा। हाइट के लिए आइकॉन शो करना पड़ेगा हमें, फिर इसमें एंटर योर हाइट, और हाइट रहेंगी इन फीट्स। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ये कौन सा कंट्रोलर रहेगा, इंच कंट्रोलर। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग हाइट आइकॉन यूज करेंगे, और यहाँ पे योर हाइट इन इंचेस। ओके, आपको सिर्फ ये समझना है कि ये फ्लडर कैसे वर्क करता है, डार्ट कोडिंग कैसे होती है। ठीक है, तो अभी मैं इसे सेव कर देती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 टेक्स्ट फील्ड, तीनों टेक्स्ट फील्ड आ चुके हैं। ठीक है, अभी हम देख सकते हैं ये बीच में है, तो अगर हमें इसको बीच में लाना है तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, प्लस मे बी मीटिंग स्टॉप हो जाएंगी अभी है। ओके, फिर से लिंक मैं भेजूंगी, आप प्लीज उसको ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, ये टेक्स्ट फील्ड को हम बीच में लाएंगे, बैकग्राउंड कलर देंगे, और इसमें हम लॉजिक भी। तो ये जो टेक्स्ट फील्ड है, एक मिनट, तो ये जो टेक्स्ट फील्ड है हम क्या करेंगे, इन टेक्स्ट फील्ड को बीच में लाएंगे। अगर सेंटर में अगर टेक्स्ट फील्ड को लाना है तो हमारे पास ऑप्शन होता है कॉलम के अंदर मेन एक्सिस अलाइनमेंट। ठीक है, मेन एक्सिस अलाइनमेंट यानी कॉलम हो गया, तो कॉलम का मेन एक्सिस अलाइनमेंट जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होंगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और क्रॉस एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन समझ लो। ठीक है, तो हम हमें क्या करना है, इसको सेंटर में लाना है। तो हम लोग मेन एक्सिस अलाइनमेंट जो है वो देंगे हम सेंटर, सेंटर। ठीक है, लेट्स सेव इट, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेंटर में आ चुका है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हमें चाहिए ये कैलकुलेट बटन। कैलकुलेट बटन मतलब होता है, टेक्स्ट बटन भी ले सकते हैं आप, एलिवेटेड बटन भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एलिवेटेड बटन लूंगी। ठीक है, एलिवेटेड बटन पे ऑन प्रेस फंक्शन आपको मिलेगा। अभी के लिए मैं इसको, ये फंक्शन को ऐसे ही रहने देती हूँ। और चाइल्ड में हम लोग क्या करेंगे, चाइल्ड में यहाँ पे टेक्स्ट है, ये बटन के ऊपर जो कैलकुलेट लिखा है वो टेक्स्ट है, तो हम चाइल्ड में टेक्स्ट लेंगे। ठीक है,
टेक्स्ट और इनसाइड द टेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कैलकुलेट, क्योंकि ये कैलकुलेट बटन रहने वाली है, ठीक है। सो व्हेनेवर यूजर यहाँ पे इंसर्ट करेगा वैल्यूज उसकी हाइट वेट, तो ये कैलकुलेट बटन क्या होंगी, ये वहां पे मैथमेटिकल एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। लेट्स सेव इट एंड यू कैन सी हियर कैलकुलेट बटन हैज कम। ओके, तो हम इस कैलकुलेट बटन को थोड़ा और विजिबल करते हैं, और आपको पता है विजिबल बनाने के लिए हमें सिंपल यहाँ पे टेक्स्ट में स्टाइल देना है। स्टाइल में टेक्सटाइल आएंगे, और टेक्सटाइल के अंदर हम लोग उसका जो है फॉन्ट साइज दे देते हैं, दैट इज 18 दे देते हैं। और फॉन्ट वेट जो है हम इसको देंगे फॉन्ट वेट डॉट 600 दे देते हैं, ठीक है। 700 दे देते हैं ताकि और बोल्ड दिखे ये। सेव। अभी आप देख सकते हैं थोड़ा मोर विजिबल दिख रहा है, ठीक है। और इस कोड को हम लोग क्या करते हैं, रीफॉर्मेट कोड विद डार्ट फॉर्मेट, सो आप इजी हो जाएगा आपको देखने के लिए, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये BMI विजिट और ये टेक्स्ट फील्ड के अंदर कहीं कोई स्पेसिंग नहीं है, तो ये स्पेसिंग देने के लिए हम यहाँ पे साइज बॉक्स यूज करने वाले हैं। तो ये टेक्स्ट विजिट के बाद हम लोग यहाँ पे साइज बॉक्स यूज करेंगे फॉर गिविंग स्पेसिंग, ओके। और हाइट हम लोग दे देते हैं 18, ठीक है। लेट्स सेव इट और देखना अभी आप यहाँ पे स्पेसिंग आ गई। सेम स्पेसिंग हम सब विजिट्स के अंदर दे देंगे, सब विजिट्स के बिटवीन हम लोग ये साइज बॉक्स दे देंगे, मतलब स्पेसिंग, ओके। यहाँ पे भी देंगे हम लोग और यहाँ पे भी देंगे। तो काफी सिंपल होता है ये सारी चीजें करना यहाँ पे, ठीक है। प्रैक्टिस करते करते हम सारी चीजें सीख जाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेसिंग आ चुकी है। इसके बाद ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसने पूरी विड्थ ले चुकी है, कॉलम की पूरी विड्थ ले चुकी है इसने, ठीक है, क्योंकि ये कॉलम के अंदर है तो इसने पूरी विड्थ जो है वो कॉलम के लिए ली है। तो हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ कम कर देते हैं, इतनी विड्थ कर देते हैं। तो उसके लिए हम यूज करेंगे कंटेनर। कंटेनर के अंदर कॉलम रखेंगे और कंटेनर में हम उसकी विड्थ मेंशन कर देंगे। तो सिंपल हम क्या करेंगे, कॉलम को क्या करेंगे, रैप कर देंगे हम लोग कंटेनर के अंदर, ठीक है। और कंटेनर में हम कंटेनर भी ले सकते हैं, साइज बॉक्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं कन्वर्ट कर लूंगी इसको साइज बॉक्स में। पहले विड्थ दे देते हैं, विड्थ 300, लेट्स सेव इट। और अभी देख सकते हैं विड्थ आ चुकी है 300, ठीक है। कंटेनर की जगह हम लोग इससे रिप्लेस विथ साइज बॉक्स कर लेते हैं, तो इट विल बी बेटर नाउ, ठीक है। ये अपने आप ही हमें यहाँ पे आइडिया दे देता है कि आप अगर ये यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो इट विल वर्क्स लाइक दैट। तो अभी हम देख सकते हैं ये जो है साइज बॉक्स में हम विड्थ 300 दी है, लेकिन इसे हमें क्या लाना है, सेंटर में लाना है। तो हम क्या करते हैं, इस साइज बॉक्स को सेंटर में ला लेते हैं ताकि ये जो पूरा डिजाइन है वो सेंटर में आ चुके। तो मैंने क्या किया, रैप विथ सेंटर, लेट्स सेव इट। और अभी आप देख सकते हैं ये सेंटर में आ चुका है इसकी तरह, ठीक है। अभी 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 हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या करना है, ये रिजल्ट शो करना है। तो लास्ट विजिट हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे, दैट विल बी अवर टेक्स्ट विजिट, ओके। तो टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर हम लोग लिखते हैं रिजल्ट, ठीक है। ये इसको सेव कर लेते हो, यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। इसके पहले भी हम लोग स्पेसिंग दे देते हैं यहाँ पे ताकि ये अच्छे से दिखे। लेट्स सेव इट, ओके। और ये जो स्टाइल है वो स्टाइल मैं कॉपी कर लेती हूँ और सेम स्टाइल में यहाँ पे भी दे देती हूँ, ठीक है। लेट्स सेव इट। अभी रिजल्ट जो है वो ज्यादा विजिबल दिखेगा। क्या प्रॉब्लम आई है यहाँ पे, वन मिनट, यहाँ पे मैंने एक ये नहीं दिया है, ठीक है। लेट्स सेव इट। आप देख सकते हो यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया है और ये मोर विजिबल है अभी। तो अभी हम क्या करेंगे, हम लोग बैकग्राउंड कलर सेट कर लेते, ठीक है।
तो मैं क्या करूंगी, मुझे ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं कलर्स चेंज करूंगी। अगर यूजर अंडरवेट है तो उसको मैं रेड कलर में शो करूंगी, अगर यूजर ओवरवेट है तो उसको ऑरेंज कलर में शो करूंगी, अगर यूजर जो है हेल्दी है तो उसको ग्रीन कलर में शो करूंगी। लेकिन मैं डिफॉल्ट कलर इसमें क्या करूंगी, अलग रखूंगी। तो मुझे मल्टीपल टाइम इस कलर को यूज करना है, तो मैं क्या करूंगी कि मैं एक वेरिएबल बना लूंगी सिंपल। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल बना लूंगी, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैं चेंज करने वाली हूँ, तो मैं यहाँ इसे नाम दूंगी बैकग्राउंड कलर, और उसका कलर को मैं डिफॉल्ट कलर में यहाँ पे दे दूंगी ब्लू, ठीक है, ब्लू कलर दे देती हूँ। और उसका शेड मैं दे देती हूँ 100, ठीक है, 100 शेड देती हूँ। और इस बीजी कलर को जो है मैं कहा लूंगी कंटेनर के अंदर, ठीक है। कंटेनर मतलब मुझे ये होल बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो मैं फिर से एक बार क्या करूंगी, सेंटर विजिट को रैप कर दूंगी कंटेनर के साथ। तो अभी ये पहले मेरा कंटेनर रहेगा, कंटेनर के अंदर मैं बैकग्राउंड कलर सेट कर देती हूँ, ठीक है। कलर में दूंगी बीजी कलर, ठीक है। नाउ लेट्स सेव इट एंड यू कैन सी बैकग्राउंड कलर ब्लू कलर हैज कम, ओके। तो पहले कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ये बैकग्राउंड कलर, उसके बाद में सेंटर में हमारा ये साइज बॉक्स रहेगा। साइज बॉक्स की विड्थ 300 है, और वो कॉलम के अंदर का हमारे विजिट, टेक्स्ट विजिट हमने लाइन बाय लाइन अरेंज मैनेज किया है, डिजाइन की है, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक के अंदर एक होती है, मतलब विजिट इनसाइड द विजिट, ओके। सो इट्स लाइक अ विजिट ट्री। नाउ अभी हमने क्या किया है, हमारा डिजाइन पार्ट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। तो अगर यूजर यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करता है, ठीक है, इन टेक्स्ट फील्ड के अंदर, तो हमें जो है वो रिजल्ट शो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर यूजर यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करता है, यहाँ पे करता है और यहाँ पे नहीं करता, ठीक है, कोई भी तीनों टेक्स्ट फील्ड में से एक पे, दो पे या तीनों पे नहीं करता है और वो कैलकुलेट कर रहा है, तो उसको रिजल्ट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशनल प्रोग्रामिंग यूज करेंगे। तो वो कंडीशनल प्रोग्रामिंग कहाँ पे करेंगे, क्योंकि कैलकुलेट बटन पे जब भी वो टैप करेगा तो ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, इसलिए हम लोग कैलकुलेट बटन पे वो कंडीशनल प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। तो हमारे कैलकुलेट बटन मतलब एलिवेटेड बटन, तो ऑन प्रेस मतलब जब वो टैप करेगा तब, तो यहाँ पे ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म होने वाले हैं। तो जो रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा, मतलब जैसे अगर उसने यहाँ पे इंसर्ट की, कुछ कोई वैल्यू इंसर्ट ही नहीं की और कैलकुलेट कर रहा है, तो उसको एक मैसेज शो होना चाहिए कि आपको ये जो फील्ड है, ब्लैंक फील्ड, वो आपको भरनी है, आपको उसे भरना है, ठीक है, खाली नहीं रखना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, पहले तो मैं वेरिएबल बनाऊंगी वेट के लिए, ठीक है। तो वेट इज इक्वल्स टू, मैं क्या करूंगी, ये जो टेक्स्ट फील्ड का जो कंट्रोलर है उसको कनेक्ट कर दूंगी मैं ये कैलकुलेट बटन के साथ, ठीक है। तो वेट कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिया है कि जब भी यूजर कैलकुलेट पे टैप करेगा तो वो कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट मतलब यहाँ की वैल्यू को वो ले लेगा और वो एडिटेबल फॉर्मेट में रहेंगी, ठीक है। सेकेंड वेरिएबल में बनाऊंगी फीट के लिए, ठीक है, फीट कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। और थर्ड वेरिएबल में बनाऊंगी इंचेस के लिए, ठीक है, इंच के लिए इंच कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग, ओके। अभी हम लोग यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ एंड एल्स कंडीशन हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो इफ कंडीशन में हम लोग लेंगे कि वेट इज नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक एंड ऑपरेटर fit is not equals to blank and operator inch not equals to blank, ओके। अगर नॉट इक्वल्स टू मीन्स कि यहाँ पे जो भी है, जो भी यूजर यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करेगा वो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए,
ठीक है, अगर वो ब्लैंक रखता है तो ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर जो है हम लोग क्या करेंगे, बीएमआई ऑपरेशन जो रहेगा हमारा, बीएमआई कैलकुलेशन, वो परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर बीएमआई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं होगा। क्या होगा फिर, एल्स कंडीशन परफॉर्म होगी। तो एल्स कंडीशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, वो सीधा मैसेज दिखाएंगे कि प्लीज फिल ऑल द रिक्वायर्ड ब्लैंक्स। ठीक है, तो हम लोग रिजल्ट ऐसा दिखाएंगे यहाँ पे जब वो कैलकुलेट बटन पे टैप करेगा यूजर। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम रिजल्ट दिखाएंगे। तो रिजल्ट जो रहेगा वो चेंजेबल रहेगा, तो उसके लिए हम उसका भी एक वेरिएबल बना लेते हैं, where result is equals to blank। ठीक है, इसे हम एम्प्टी इसलिए रखेंगे क्योंकि रिजल्ट जो रहेगा वो चेंजेबल रहेगा अकॉर्डिंग टू यूजर इनपुट। ठीक है, तो ये रिजल्ट को एज इट इज हम ये टेक्स्ट इनपुट के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है अभी। ठीक है, रिजल्ट, तो ये रिजल्ट हम तब शो करेंगे जब यूजर कोई भी वैल्यू इंसर्ट करना भूल जाएगा या फिर कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे ये परफॉर्म करें, यहाँ पे हम लोग वो रिजल्ट शो कर लेंगे। ठीक है, रिजल्ट शो करेंगे हम लोग, प्लीज फिल ऑल द रिक्वायर्ड ब्लैंक्स। ओके, ठीक है, लेट्स सेव इट। क्या हुआ है, अच्छा मैंने ये नहीं, ठीक है, तो अभी हम लोग इसे सेव करेंगे। ठीक है, उसके बाद में अभी मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल देती हूँ, जैसे 23 एंड कैलकुलेट करती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि हमें चेंजेस चाहिए हमारे स्क्रीन पे। जब भी हमें चेंजेस चाहिए रहते हैं स्क्रीन पे और हम अगर स्टेटफुल विजिट यूज कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग कॉल करेंगे सेट स्टेट फंक्शन को। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो सेट स्टेट फंक्शन को हम जब भी कॉल करेंगे, अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग इसे सेव करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं, और अभी जब भी हम कैलकुलेट पे टैप करेंगे तो हमें रिजल्ट आएगा, प्लीज फिल ऑल द रिक्वायर्ड ब्लैंक्स। ओके, यहाँ पे अगर यूजर कोई वैल्यू डालता है, ठीक है, यहाँ पे 5 डाल दिया है और यहाँ पे नहीं डाला और कैलकुलेट करेंगे तो उसको यही रिजल्ट शो होगा, प्लीज फिल ऑल द रिक्वायर्ड ब्लैंक्स। ठीक है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे 2 डाल रही हूँ और कैलकुलेट कर रही हूँ, फिर भी मुझे क्या हो रहा है, यही शो हो रहा है, प्लीज फिल ऑल द रिक्वायर्ड ब्लैंक्स। तो अभी हम लोग, ये क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे बीएमआई कैलकुलेशन किया ही नहीं है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हमें पहले करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन में करने के लिए हमें पता है कि बीएमआई के ऐसा यूनिट होते हैं केजी पर मीटर स्क्वायर। तो हम अपनी हाइट केजी में तो डाल सकते, सॉरी, हम अपना वेट केजी में तो डाल सकते, लेकिन हमारी जो हाइट है वो मीटर में हमें जनरली पता नहीं रहती। तो पहले हम क्या करेंगे, हमें ये पता रहती है कि हमारी जो हाइट है वो हमें इंचेस में पता रहती है। ठीक है, तो मैं एक व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेती हूँ, एक मिनट, हाँ, व्हाइट बोर्ड। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि वहां पे हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सबको समझ रहा है क्या? हेलो? यस मैम, समझ आ रहा है। ओके, समझ में नहीं भी आ रहा होगा तो आप सिर्फ उसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कि फ्लटर कैसे वर्क करता है, उसमें एप्लीकेशंस कैसे बनती है। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड, अगर हम लोगों को टोटल हमारी हाइट जो है वो मीटर में नहीं पता रहती है। ठीक है, जनरली हमारी हाइट जो रहती है हमें वो इंच, फीट और इंचेस में पता रहती है। क्या हुआ है ये? ठीक है, क्या है, ठीक है, इट्स ओके, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं।
ठीक है, तो हमें जनरली हमारी जो हाइट है वो फीट और इंचेस में पता रहती है, और टोटल इंचेस मतलब क्या होता है, टोटल इंचेस इज इक्वल टू होता है फीट मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस इंच। ओके, सो टोटल इंच इज इक्वल टू होता है फीट मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस इंच। ओके, इट मीन्स ये फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी जो हाइट है वो टोटल इंचेस में निकाल सकती है। इफ कोई पर्सन की हाइट 6 हो उस और तो उसकी अगर टोटल इंचेस में निकालने हैं तो 6 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, प्लस इंच मतलब 72 प्लस 1 कितना होगा 73, तो उसकी टोटल इंचेस में हाइट निकल जाएंगे 73 इंचेस। ओके, और हमें पता होता है कि 1 इंच यानी कितना होता है, 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर। ओके, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें हमारी टोटल सेंटीमीटर में हाइट अगर निकालनी है तो हम सिंपली ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, टोटल सेंटीमीटर मतलब टोटल इंच, सॉरी टोटल इंच मल्टीप्लाई बाय कितना 2.54। ओके, 2.54, एंड देन हमें ये भी पता होता है कि 1/100 1/100 मीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारा टोटल मीटर में अगर हमें हाइट निकालनी है तो वो कितनी बनेंगी, टोटल सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100। ओके, तो ये ही हम फॉर्मूले हम सारे हमारे यहाँ पे बीएमआई कैलकुलेशन में डाल देंगे इनसाइड द वेरिएबल। ओके, सो लेट्स मेक इट। तो पहला वेरिएबल हम लोग यही बनाएंगे टोटल इंच का, तो टोटल इंच इज इक्वल्स टू, अभी हम लोग क्या करेंगे, हमें जो है सारी जो वैल्यू है वो इंटीजर में चाहिए है। ठीक है, आई एम सो सॉरी, हमें जो वैल्यूज रहेंगी वो सारी इंटीजर में चाहिए रहेंगी अभी, क्योंकि ये पहले एडिटेबल फॉर्मेट में थी, अभी हमें इंटीजर में चाहिए रहेंगी। तो इंटीजर में चाहे अगर वैल्यूज चाहिए तो हम पहले उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं वेट वेरिएबल को इंटीजर में कन्वर्ट कर लेती हूँ। वेट इज इक्वल्स टू इंट डॉट पार्स। इंट डॉट पार्स मतलब ये सारी वैल्यूज है जो वो इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो सोर्स क्या रहेंगे इसके लिए मैं पहले बना रही हूँ, तो वेट। ठीक है, वेट, ठीक है, उसके बाद में मैं सेकेंड वेरिएबल इंटीजर फीट। ठीक है, फीट इज इक्वल्स टू इंट डॉट पार्स, और सोर्स के अंदर आएगा फीट। अभी इंचेस के लिए मैं बनाऊंगी आई इंच इज इक्वल्स टू इंट डॉट पार्स इंच। ओके, तो ये मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए ये वेरिएबल लिए है। इसके बाद हम सिंपली ये वाले फॉर्मूलेज इसमें पुट कर देंगे, लाइक वेयर टोटल इंच। ओके, टोटल इंच इज इक्वल्स टू क्या है, फीट मल्टीप्लाई बाय 12, तो फीट मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस इंच। ओके, ये वाला आई इंच। ठीक है, ये हो गया एक। ओके, यहाँ पे वेर नेक्स्ट वेरिएबल हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, टोटल सेंटीमीटर। तो टोटल सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू टोटल इंच, क्या था, टोटल इंच मल्टीप्लाई बाय 2.54। ओके, और उसके बाद में मीटर के लिए, क्योंकि हमें जो है हमारी हाइट मीटर्स में चाहिए, इसलिए ये सारी चीजें हमें कन्वर्ट करनी पड़ी। ठीक है, वेर टोटल हाइट इन मीटर इज इक्वल्स टू टोटल हाइट इन सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100। ओके, ठीक है,
एरर क्यों आया है यहाँ पे? ओके, देखते हैं, पहले इसे डाल देते हैं वेरिएबल, फिर लास्ट BMI इज इक्वल्स टू आई वेट, इंटीजर वेट, क्योंकि ये है सॉरी फॉर्मूला हमारा, सो टोटल हाइट इन मीटर मल्टीप्लाई बाय टोटल हाइट इन मीटर. ओके ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने फीड दिया, ये हमें ये इंटीजर में चाहिए है ना, मैं ये भूल गई थी. ठीक है, तो ये वाला लेना है हमें. मैंने वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका था. अब देख सकते हैं एरर इज गॉन. ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला भी डाल दिया है. अभी हम डायरेक्टली हमारा रिजल्ट जो है वो शो करेंगे यहाँ पे. ठीक है, व्हाट विल बी आवर रिजल्ट? रिजल्ट इज इक्वल्स टू, हम करेंगे योर BMI इज जो भी आएगा. ठीक है, BMI ये वेरिएबल यहाँ पे पुट कर देंगे, मतलब सारे कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाएंगे यहाँ पे जब यूजर यहाँ पे सारे इनपुट दे देगा और ये रिजल्ट हमारा शो हो जाएगा. ठीक है, तो अभी हम इसे रन करते हैं, लेकिन होगा नहीं. क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें चेंजेस अगर चाहिए तो सेट स्टेट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे. तो सेट स्टेट को मैं कॉल कर लेती हूँ. तो इसे मैं बाहर भी रख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अंदर में रखेंगे तो ज्यादा वो बेटर भी दिखता है. ठीक है, तो लेट्स रीरन द प्रोजेक्ट. अभी हम क्या करेंगे, हम इसमें अपनी वैल्यूज पुट करेंगे. जैसे मैं 50 कर देती हूँ वेट. ठीक है, वेट कर देती हूँ मैं 50, उसके बाद में हाइट 5, ये 6. ठीक है, लेट्स कैलकुलेट. और आप देख सकते हैं यहाँ पे BMI अपना आ चुका है 0.59 समथिंग. ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कंडीशन देंगे. ठीक है, 7 मिनट्स ही दिखा रहा है यहाँ पे. हेलो, ओके, तो मैं क्या कर लेती हूँ, अभी हम क्या करेंगे, हम कलर्स चेंज करेंगे कि अकॉर्डिंग टू कलर्स, मतलब अकॉर्डिंग टू BMI हम लोग क्या करेंगे, यूजर का स्टेटस बताएंगे कि वो हेल्दी है, अंडरवेट है या ओवरवेट है. तो अभी सिंपल एक ही प्रोसेस हमें करनी है, वो है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन डाल देंगे यहाँ पे. कि क्या कंडीशन डालेंगे हम लोग, इफ एंड एल्स कंडीशन यहाँ पे यूज करेंगे. इफ एल्स कंडीशन में हम डालेंगे कि अगर BMI 25 के ऊपर है. ठीक है, 25 के ऊपर अगर BMI है कोई पर्सन का, तो हम लोग शो करेंगे कि हम लोग उसमें मैसेज शो करेंगे. ठीक है, तो मैसेज वो चेंजेबल होगा. लेट्स मेक वेरिएबल फॉर मैसेज. ठीक है, मैसेज, मैसेज के लिए हम लोग उसे भी एम्प्टी छोड़ देंगे क्योंकि वो चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू यूजर्स इनपुट. तो हम लोग क्या मैसेज शो करेंगे, मैसेज शो करेंगे हम कि यू आर ओवरवेट, क्योंकि 25 के ऊपर अगर उसका BMI है तो वो ओवरवेट कहलाएगा. ठीक है, जनरली यही वैल्यूज होती है BMI की. उसके बाद उसमें हम लोग BG कलर क्या देंगे, बैकग्राउंड कलर हम लोग अपने अकॉर्डिंग दे देंगे. ठीक है, कलर्स कौन सा कलर देंगे, ओवरवेट रहेगा तो हम लोग ऑरेंज कलर दे देते हैं. ऑरेंज डॉट शेड दे देंगे हम लोग 200. ठीक है, उसके बाद में सेम हम लोग क्या करेंगे, एल्स कंडीशन. एल्स कंडीशन में भी हम लोग एल्स इफ अगर BMI जो है वो लेस देन 18 रहता है. ठीक है, तब हम लोग क्या,
तब हम लोग क्या शो करेंगे कि जो यूजर रहेगा वो अंडरवेट है, तो मैसेज हमारा जाएगा यू आर अंडरवेट। ठीक है, और उसमें हम लोग बीजी कलर शो करेंगे। बीजी कलर्स हम लोग शो करेंगे अंडरवेट के लिए रेड। ठीक है, रेड डॉट शेड उसमें हम लोग दे देते हैं 200। ठीक है, और अभी एल्स कंडीशन में हमें कोई स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो 25 के ऊपर रहेगा वो ओवरवेट कहेगा, और जो अंडर रहेगा वो 18 के अंडर रहेंगे उसे अंडरवेट कहेंगे, और इन दोनों के बिटवीन वाले को हम लोग मैसेज शो कर देंगे कि ये हेल्दी पर्सन है। ठीक है, तो मैसेज हम शो करेंगे यू आर हेल्दी। ठीक है, और उसमें बीजी कलर हम लोग शो कर देंगे ग्रीन। ठीक है, कलर्स डॉट ग्रीन, शेड हम दे देंगे 200। तो ये फाइनल हमारा कोडिंग हो चुका है। अब हम इसे करते हैं रन। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, सेट स्टेट को अभी तक अप्लाई नहीं किया है, और हमने ये जो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई की है तो उसे हम यहाँ पे दिखाने के लिए कहाँ पे पुट करेंगे, रिजल्ट में ही डालेंगे ना। तो हम लोग पहले लाइन में उसको दिखाएंगे। तो पहले लाइन में हम लोग क्या करेंगे, मैसेज को दिखा देते हैं। ठीक है, डॉलर मैसेज, और नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करती हूँ, नेक्स्ट लाइन में मैं अपना ये BMI दिखा दूंगी। ठीक है, तो लेट्स रीरन इट। ओके, अभी मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करती हूँ। जैसे मैं वेट डाल देती हूँ 50, हाइट 5 एंड इंचेस 3 डाल देती हूँ। तो यहाँ पे अंडरवेट आया, मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, अंडरवेट नहीं आना चाहिए ये। फॉर्मूले, ओह सॉरी, ये देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस चाहिए। टोटल इंचेस का फॉर्मूला है फीट मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस इंच, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन दे दिया। ओके, लेट्स रीरन द प्रोजेक्ट। हाँ, ओके, now you can see default color is blue, and now I will insert some values like weight I will put 59, and then height I will put 5, and inches 3. Okay, suppose 3. So here you can see that your status is healthy and your BMI value is 23.0411. It's a very big value after the point. Okay, so we have one thing for it to short it. क्या करेंगे हम लोग, ये जो है हमारा रिजल्ट जो हमने शो किया है, ओके, ये यहाँ पे, तो हम लोग, हमें इसमें एक ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, BMI डॉट टू स्ट्रिंग, ये देखो टू स्ट्रिंग एज फिक्स्ड इंट फ्रैक्शन डिजिट मुझे सिर्फ 2 चाहिए, तो मैं करती हूँ 2 ही, तो मुझे आफ्टर पॉइंट 2 ही डिजिट मिलेंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैं अभी डाल देती हूँ 100 वेट। ठीक है, किसी का वेट 100 डाल देती हूँ, हाइट डाल देती हूँ 5, और ये इंच 1 एंड कैलकुलेट। तो देखिए यहाँ पे आ चुका है कि यू आर ओवरवेट, कलर भी चेंज हो चुका है, और ये BMI भी आया है 41.66। तो 2 ही फ्रैक्शन डिजिट यहाँ पे आ चुके हैं। तो दिस इज हाउ हम लोग कोडिंग करते हैं। यहाँ पे डार्ट, ये सारी डार्ट कोडिंग है, ओनली 1 लैंग्वेज, लॉजिक भी इसी लैंग्वेज के साथ रहता है, और सारी चीजें ये एक ही कोडिंग में होंगी। ठीक है, और यही कोडिंग के साथ आपने ये एप्लीकेशन बनाया है, सेम इसको आप वेबसाइट भी बना सकते हैं सेम कोडिंग की,
और यही कोड आपका एंड्रॉइड पे भी चलेगा, आईओएस पे भी चलेगा, वेब पे भी चलेगा और डेस्कटॉप पे भी चलेगा। ठीक है, अगर आपको ये जो सारे एरर्स है इसको हटाना है तो शो कॉन्टेक्स्ट चेक पे जाएंगे हम लोग। सॉरी, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा, अभी मिल नहीं रहा है। ठीक है, एनीवेज ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट चाहिए है, अगर नहीं भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं ले रहा है। ठीक है, तो दिस इज हाउ हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो में कोडिंग करते हैं। सो थैंक यू so much everyone for your time and your participation today.